آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ترکیہ پارلیمنٹ میدان جنگ میں تبدیل، ارکان کی ایک دوسرے پر گھوسوں اور لاتوں کی بارش۔ شان رسالت میں گستاخی، اورنگ آباد میں مسلمانوں کا شدید احتجاج۔ سابرمتی ایکسپریس کی 22 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئی، اتر پردیش میں حادثہ۔ اور تلنگانہ میں 24 گھنٹوں کے دوران بارش، محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان کے گاؤں اور قصبوں پر اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کے لیے جمعہ کو شمالی اسرائیل میں ایک فوجی اڈے پر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا۔ حزب اللہ کے میڈیا آفس نے ایک بیان میں بتایا کہ جنوبی گاؤں اور محفوظ گھروں پر اسرائیلی دشمن کے حملوں کے جواب میں اسلامی مزاحمتی جنگجوؤں نے 188ویں بریگیڈ کی بختربند بٹالین کے ہیڈ کوارٹر راویہ بیرک پر فضائی حملے کیے ہیں۔ بیان میں مرنے والوں کی تعداد بتائے بغیر کہا گیا ہے کہ ڈرون نے ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں اسرائیلی افسران اور فوجی تعینات تھے اور آباد تھے، اپنے اہداف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا اور زخمیوں کی تصدیق کی۔ ادھر لبنانی فوجی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرونز اور جنگی طیاروں نے جمعہ کے روز 5 سرحدی قصبوں اور مواضعات پر 7 فضائی حملے کیے، جس میں 7 مکانات تباہ اور تقریباً 20 دیگر کو نقصان پہنچا۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ میں جیل میں قید اپوزیشن کے رکن کے معاملے پر بحث کے دوران زبردست ہاتھا پائی ہوئی، جس میں کئی ارکان زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جمعہ کے روز ترکیہ کے ارکان پارلیمنٹ جیل میں بند اپوزیشن کے قانون ساز شریف الدین جان عطالی پر بحث کے دوران جھگڑ پڑے۔ جیل میں قید رکن پارلیمنٹ کو اجلاس میں لانے کے مطالبے پر جھگڑا شروع ہوا۔ بحث کے دوران ارکان پارلیمنٹ ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ حکومتی ارکان نے تنقید کرنے پر اپوزیشن رکن کو مارا پیٹا، جس کے بعد ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ ترک پارلیمنٹ میں ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب اپوزیشن نے جیل میں قید رکن پارلیمنٹ کو اجلاس میں شریک کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران ایک حکومتی رکن نے اپوزیشن رکن کو مکہ دے دیا، جس کے بعد ایوان میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا اور جھگڑے میں کئی ارکان زخمی بھی ہوئے۔ مہاراشٹر کے اورنگ آباد شہر میں جمعہ کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مسلمانوں کا ایک گروپ پولیس اسٹیشن کے روبرو جمع ہو گیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قابل اعتراض ریمارکس کرنے والے ایک ہندو مذہبی لیڈر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ مسلمان بڑی تعداد میں سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور رام گیری مہاراج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہندو لیڈر نے پیغمبر اور اسلام کے خلاف اہانت آمیز ریمارکس کیے ہیں۔ انسپکٹر نرملا پردیسی نے مسلمانوں کو سمجھایا اور ان سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ خاتون انسپکٹر نے بتایا کہ اس سلسلے میں سخت کارروائی کریں گی۔ رام گیری مہاراج نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوؤں کو چوکس رہنا چاہیے۔ میں نے وہی کہا ہے جو مجھے کہنا چاہیے تھا اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور میں نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجلس کے سابق رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے سٹی پولیس کمشنر کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے رام گیری مہاراج کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اورنگ آباد کے علماء کرام کے ساتھ پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور درخواست کی کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے رام گیری کے خلاف جلد سے جلد کارروائی کی جائے۔ اتر پردیش میں جمعہ کی دیر رات گئے سابرمتی ایکسپریس کی 22 بوگیاں پٹریوں سے اتر گئیں۔ ٹرین وارانسی سے احمد آباد جا رہی تھی۔ خوش قسمتی کی بات یہ رہی کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ مسافرین زخمی ہوئے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حادثہ کانپور شہر سے 11 کلومیٹر دور بھیم سین اور گووند پوری اسٹیشنوں کے درمیان صبح تقریباً 2:45 پر پیش آیا۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ ٹرین کا انجن پٹری پر رکھی کسی بھاری چیز سے ٹکرا گیا۔ انجن پر تصادم کے نشانات ہیں۔ شواہد کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ آئی بی اور یو پی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔
नार्दर्न सेंट्रल रेलवे के जीएम उपेंद्र चंद्र जोशी ने कहा कि ये यकीनी है कि हादसा इंजन की किसी चीज़ से टकराने की वजह से हुआ। मौका वाक़े पर कुछ नहीं मिला। साथ ही यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनकर आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के एक रोज़ा दौरे पर थे। तिरुपति से नेल्लूर आमद पर पुलिस परेड ग्राउंड में गवर्नर अब्दुल नज़ीर, रियासती वज़रा नारायणा, राम नारायण रेड्डी और दीगर सरकारी ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। बादाजां जिले के सरस्वती नगर के अक्षरा विद्यालय पहुंचे। उन्होंने स्कूल की जानिब से चलाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने नौजवानों के लिए महारत की फ़रोग़ की तरबियत की फराहमी की अहमियत को उजागर किया। बादाजां नायब सदर जमहूरिया स्वर्णा भारती ट्रस्ट पहुंचे, जहां साबिक़ नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने उनका इस्तकबाल किया। ट्रस्ट की बेशतर खिदमात से धनकर को वाकिफ़ करवाया गया। नायब सदर जमहूरिया ने ट्रस्ट के सालाना जलसे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। बिहार के भागलपुर ज़िले में आज सुबह करोड़ों रुपए की लागत से ज़ेर तामीर सुल्तानगंज अगवानी घाट गंगा पुल का सुपर स्ट्रक्चर अचानक मुनहदम हो गया। सरकारी ज़राए ने यहाँ बताया कि ज़ेर तामीर सुल्तानगंज अगवानी घाट गंगा पुल के पिलर नंबर 9 और 10 के दरमियान सुपर स्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम हफ्ते की सुबह एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ मुनहदम होकर गंगा में गिर गया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ये पुल एसपी संगला कंपनी तामीर कर रही है। ज़रा ने बताया कि इस हादसे के बाद पुल की तामीर का काम रोक दिया गया। कंपनी, स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अफसरान और ज़िला इंतजामिया के लोग मौके पर पहुंच गए। सिद्दीपेट टाउन में जुमा की रात देर गए उस वक्त कशीदगी देखी गई जब बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव की सरकारी क़यामगाह एमएलए कैंप ऑफिस कांग्रेस कारकुनों ने ज़बरदस्ती दाखिल होकर हंगामाराई की। ये हंगामाराई किसानों के कर्जों की माफ़ी पर साबिक़ वज़ीर और बीआरएस लीडर हरीश राव से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने की। उन्होंने कैंप ऑफिस में हरीश राव से इस्तीफ़े का मुतालबा करने वाले फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए, जिनको निकालने के लिए बीआरएस के कारकुन भी वहां पहुंचे, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। हरीश राव ने किसानों के कर्ज़-ए-जात की मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया था, जिस पर रेवंत रेड्डी ने उन्हें 15 अगस्त तक किसानों के कर्ज़-ए-जात की मुआफ़ी पर असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़े का चैलेंज किया था। चीफ मिनिस्टर ने 15 अगस्त को किसानों के कर्ज़-ए-जात को माफ़ कर दिया, जिस पर कांग्रेस के लीडरों ने हरीश राव से इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए फ्लेक्सी बोर्ड्स लगाए, जिस पर तनाज़ा हो गया। बीआरएस के कारकुन और कायदीन की बड़ी तादाद फ्लेक्सी बोर्ड्स को निकालने के लिए पहुंच गई। दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों जमातों के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हफ्ते को इंकशाफ किया कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए मुख्तलिफ शोबों में कोर्सेज़ का आगाज़ दशहरे से होगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 कोर्सेज़ की निशानदेही की जा चुकी है, जिनमें से 6 कोर्सेज़ का आगाज़ दशहरा फेस्टिवल से किया जाएगा। हफ्ते को एक आला सतही जायज़ा इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने ये इंकशाफ किया। महकमे फाइनेंस के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे इंडस्ट्रीज जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीमात बी वेंकटेशम और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शांति कुमारी ने कहा कि मुचरला में वाक़े 57 एकड़ अराजी पर यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जा चुका है और तमाम तामीरी काम मुकम्मल होने तक ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया NAC या NITHN में आर्जी तौर पर काम करेगी। आनंद महिंद्रा को पहले ही स्किल यूनिवर्सिटी का चेयरमैन और श्रीनिवास सी राजू को माविन चेयरमैन मुकर्रर किया जा चुका है। शहर हैदराबाद के हबशीगुड़ा चौराहे के पास पेश आए दिलकरा सड़क हादसे में एक स्कूली तालिबा हलाक हो गई। हादसा इस कदर भयानक था कि ऑटो बस के नीचे फंस गया। तफसीलात के मुताबिक तारनाका कीमती कानूनी से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा
सात्विका हबशीगुड़ा के खानगी स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थी। वह आज स्कूल जाने के लिए सुबह 8 बजे ऑटो में सवार हुई। ऑटो जैसे ही हबशीगुड़ा चौराहे के पास पहुंचा, अचानक सिग्नल पर सुर्ख बत्ती जल उठी, जिसके साथ ही ड्राइवर ने ऑटो रोक दिया। इसी असना में अगबी सिम्त से आने वाली लारी ने ऑटो को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो सामने रुकी हुई बस के नीचे घुस पड़ा और उसके परखचे उड़ गए। हादसा इस कदर शिद्दत का था कि ऑटो पूरा तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तालिबा और ऑटो ड्राइवर शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तालिबा को बाद मायना मुर्दा करार दिया, जबकि ऑटो ड्राइवर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बताया गया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में पुलिस ने हशीश आइल जब्त कर लिया। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स ब्यूरो ने बालानगर पुलिस के ताउन से बालानगर में चरस का तेल हशीश आइल बेचने वाले को गिरफ्तार किया। मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 1.2 मिलीलीटर हशीश आइल जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 10.30 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद 4 मफरूर बताए गए हैं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान विकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गदवाल अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के तमाम अजला के बाज़ मकामात पर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। करीमनगर और मेदक में शदीद बारिश हुई। साथ ही जगतियाल के चंद मकामात और जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, महबूबनगर, मुलुग, नागर कर्नूल, निज़ामाबाद, राजन्ना सिरसिल्ला, रंगारेड्डी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। इसी दौरान तेलंगाना में कई मकामात पर बारिश होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तुर्किया पार्लियामेंट मैदान जंग में तब्दील, अरकान की एक दूसरे पर घूंसों और लातों की बारिश। शान रिसालत में गुस्ताखी, औरंगाबाद में मुसलमानों का शदीद एहतजाज। साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां पटरियों से उतर गई, उत्तर प्रदेश में हादसा। और तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान बारिश, महकमे मौसमियात की पेश कयासी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।